My lovely students, welcome to Mathological. How are you all? Agenda of this session is to discuss the questions based on dictionary order. And such questions are more important for OMITS examination, other management examinations as compared to CAT. But we'll also see some variation to this question so that this type of question becomes interesting for CAT as well. Start karte hain session, and if you will watch the whole session in one go, you'll understand all types of nuances and all your confusions will die down for sure. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू लाइकिंग द कंटेंट देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज शेयर अबाउट द चैनल विद अदर एस्पिरेंट्स सो दैट they can also get the desired help. You can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram regarding your preparation queries or questions at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari and let us start the session, another session on permutations and combinations in which we'll be discussing dictionary order. Questions based on dictionary order. For example, let us say we are choosing a word that is milk. Okay? And we need to find out if we are arranging all words made out of these four letters MILK, then what will be dictionary order of milk? Okay, we are making all the words whether there is a meaning of to that word or not. ठीक है, meaning हो नहीं हो, with or without meaning, total arrangements कितने बनेंगे? Since milk has total 4 letters and all 4 are distinct, the number of ways of arrangement will be 4 factorial, which is equal to 24 total words होंगे. ठीक है, और डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड्स विल ऑलवेज बी इन द ऑर्डर ऑफ इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इजंट इट सो? सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज दीज 4 letters. फर्स्ट देयर विल बी I, then K, then L, and finally M. So initial words will start with I. अब I फर्स्ट प्लेस पर आ गया है, तो कितने वर्ड्स बनने वाले हैं? वी हैव 3 choices for the second place, 2 for the third and 1. तो 3 factorial ways में we can arrange the remaining letters, यानी कि 6 words will be there starting with I. Similarly, words starting with K, again 3 factorial which is equal to 6. Words starting with L, again 3 factorial which is 6. और इसके बाद में total 18 words are already made from I, K and L. अब words start होंगे starting with M. तो 19th word will be starting with M, और M के बाद में अगेन देख लो बाकी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो M के बाद में रेस्ट वर्ड्स विल बी M, I, K, L. तो 19th वर्ड विल बी M, देन I, K, L. रिमेनिंग आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब इसके बाद में M एंड I विल बी एट देयर प्लेसेस, बट K और L आपस में जम्बल्ड हो जाएंगे. सो M, I, L, K, दिस विल बी अवर 20th वर्ड. तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दैट 20th वर्ड विल बी देयर मिल्क. ठीक है, मिल्क विल बी 20th वर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर व्हेन ऑल द वर्ड्स आर मेड आउट ऑफ M, I, L, K ओनली. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? इज दिस पार्ट क्लियर? And if that is clear, then एक question करते हैं इस पर based. And the question is, if all the permutations of the word again are arranged in a dictionary as in the dictionary, then 50th word क्या होगा? Now milk और again में difference क्या है? Again has 2 A's. So यहाँ पे एक letter हमारा repeat भी हो रहा है. First of all, alphabetical order में mention कर दो सारे के सारे letters को. So first A, 2 A's आ रहे हैं, but first A, then G, then I, then N. एंड सिंस हमें अगेन का ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, ना अगेन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 50th वर्ड क्या होगा. व्हाट विल बी 50th वर्ड मेड बाय दीज लेटर्स? ओके, सो ए से बनने वाले टोटल वर्ड्स कितने होंगे? इफ यू आर स्टार्टिंग विद ए, इफ यू आर स्टार्टिंग विद ए, इन दैट केस स्टार्ट में ए के हमने ले लिया है. सो रिमेनिंग वर्ड्स क्या बचे? रिमेनिंग लेटर्स क्या बचे? GAIM, 4 लेटर्स ऑल डिस्टिंक्ट. ठीक है, पूरे अगेन में हमारे पास 2 A's हैं, बट ए से इफ वी आर स्टार्टिंग तो ए तो एक ए तो स्टार्ट में फिक्स हो गया. तो नाउ ओनली 1 A इज रिमेनिंग. टोटल 4 लेटर्स ऑल डिस्टिंक्ट. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 4 फैक्टर विच इज इक्वल 24 स्टार्टिंग विद ए. देन इफ यू आर स्टार्टिंग विद G, अगेन 4 लेटर्स अरेंज करने हैं, बट दिस टाइम वी हैव 2 A's और बाकी लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे. तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 12. सेम फॉर I, 4 factorial divided by 2 factorial which is equal to 12. 24 plus 12 plus 12. तो वर्ड स्टार्टिंग विद A, G एंड I टोटल कितना आ गया? 48 आ गया. 48 वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर. अब वर्ड स्टार्ट होंगे N से. तो नेक्स्ट वर्ड विच विल बी 49th वर्ड विल बी स्टार्टिंग विद A एंड आफ्टर N से स्टार्ट होगा एंड आफ्टर N ऑल लेटर्स विल बी इन डिक्शनरी ऑर्डर, बट वी हैव 2 A's. तो ये ध्यान देना. इसके बाद 49th वर्ड में क्या होगा? A
then once again A. So NAAGI, this will be our 49th word, and then lastly 50th word will be when G and I will be swapping their places. So NAAIG, this will be our 50th word. NAAIG. Is that part clear? तो अपना 50th word हो जाएगा NAAIG. Okay. So now that we've understood this, so one more question. If all the permutations of the word syrup are arranged in dictionary order, then find the ranking of the word syrup. All the permutations of the word syrup, if they are arranged in dictionary order, then what will be ranking of the word syrup? First of all, अपना प्रॉपर वे से कन्वेंशनली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद में शॉर्टकट भी देखेंगे. शॉर्टकट भी अपना कन्वेंशनली कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, बट उसके बाद में एक बार शॉर्टकट देख लेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए. ओके, सो अगेन सबसे पहला स्टेप होगा to arrange all these letters. All letters are distinct, so all distinct letters, all letters in alphabetical order. So first of all we will be having P, then R, then S, then U and Y. P, R, S, U, Y. And we need the ranking of the word syrup, which will be starting with S. तो पहले से P से स्टार्ट होने लेटर्स कितने होंगे, वर्ड्स कितने होंगे? 4 factorial, which is 24. Word starting with R, again 4 factorial, which is equal to 24. Then starting with S, S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनेंगे. देखो S तो हमने ऑलरेडी ले लिया फर्स्ट प्लेस पे, तो S के बाद में फर्स्ट कैन बी P, तो एस पी, वर्ड स्टार्टिंग विद एस पी, 3 प्लेसेस आर देयर, ऑल 3 डिस्टिंक्ट, तो 3 factorial, which is equal to 6. Then S R, again 3 factorial, which is equal to 6. Then S मत कर देना, S U, again 3 factorial, which is equal to 6. अब वर्ड स्टार्ट होंगे एस वाई से. कितने ऑलरेडी वर्ड्स बन चुके हैं? 24 प्लस 24, 48 प्लस 18, 66 वर्ड्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग 67th वर्ड होगा अपना एस वाई से. तो एस वाई एंड देन पी आर यू, एस वाई पी आर यू, देन एस वाई पी आर एंड यू विल बी स्वैपिंग प्लेसेस. तो एस वाई पी यू आर, दिस विल बी 68th वर्ड. देन 69th विल बी एस वाई पी के बाद में तो आर यू का तो आपस में अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया. सो नाउ आफ्टर पी विल बी हैविंग आर, तो एस वाई आर एंड देन पी और यू का अरेंजमेंट क्या है? फर्स्ट पी देन यू, एस वाई आर पी यू, एंड लास्टली इट विल बी एस वाई आर एंड यू एंड पी विल बी जम्बलिंग प्लेसेस, स्वैपिंग प्लेसेस. तो 70th वर्ड विल बी syrup. Our answer will be 70 in this case. 70 will be our answer in this case. Clear है? ठीक है. ओके, नाउ लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा पूरा प्रोसीजर, ठीक है. बट लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज, देखो सबसे पहले हमारा व्हेन वी आर मेकिंग वर्ड सिरप, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस इज कमिंग थर्ड, रैंकिंग कर देते हैं सबकी. तो पी इज कमिंग फर्स्ट, आर इज सेकंड, एस इज थर्ड, यू इज फोर्थ एंड वाई इज फिफ्थ. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस इज कमिंग थर्ड, तो सबसे पहले हमारे वर्ड्स आएंगे स्टार्टिंग विद पी एंड स्टार्टिंग विद आर, इजंट इट सो? एंड ऑल दोज वर्ड्स विल बी, नंबर ऑफ वेज क्या होगा? सिंस दे आर स्टार्टिंग विद पी एंड रिमेनिंग लेटर्स आर 4, तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा, इजंट इट सो? तो बिफोर एस, फर्स्ट लेटर पे फोकस करो, फर्स्ट लेटर एस है हमारा. सो बिफोर एस पी एंड आर देयर, तो वर्ड स्टार्टिंग विद पी एंड आर विल बी कमिंग फर्स्ट, एंड फॉर बोथ ऑफ दीज number of words will be 4 factorial, 2 into 4 factorial हो गया प्लस. ओके, देन आफ्टर दैट एस तो ऑलरेडी हमारा अकाउंटेड फॉर हो गया, ठीक है. अब फोकस करो वाई पे, एस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड, एस को हटा दो. नाउ वाई, बचे हुए रिमेनिंग लेटर्स में से वाई इज कमिंग एट द 4th प्लेस, 5th पे आ रहा है टोटल, बट एस को एक्सक्लूड कर दिया हमने. तो नाउ वाई इज कमिंग एट द 4th प्लेस, और वाई से ऊपर अपना यू है, आर है, पी है. ओके, तो एस से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होंगे हमारे, फर्स्ट एस पी, एस आर एंड एस यू से वर्ड्स बनेंगे हमारे. कितने बन पाएंगे? तो 3 सच लेटर्स आर देयर, 3 into 3 फैक्टोरियल, ठीक है. 4 फैक्टोरियल के बाद आ जाएगा 3 फैक्टोरियल. क्लियर है? अभी इसी चीज़ को शॉर्टकट में एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएगा. बट पहले जो हमने स्टेप्स किए हैं उनको समझ लेते हैं, वही सेम चीज़ शॉर्टकट में है. देन वाई इज ऑल्सो एग्जॉस्टेड, तो वाई को भी क्रॉस कर दो. देन कम्स आर, आफ्टर एस एंड वाई कम्स आर, बट आर हमारा आ रहा है सेकेंड प्लेस पे, बिकॉज नाउ पी आर एंड यू आर रिमेनिंग. तो आर से पहले पी आ रहा है, इजंट इट सो? यानी कि ओनली 1 लेटर इज देयर. सो 1 into नंबर ऑफ वर्ड्स विद एस वाई पी विल बी 2 फैक्टोरियल, तो 1 into 2 फैक्टोरियल प्लस फाइनली नाउ आर भी कंज्यूम हो गया. नाउ पी एंड यू आर रिमेनिंग, ठीक है. पी एंड यू आर रिमेनिंग, और हमें चाहिए क्या? यू के करस्पॉन्डिंग, तो यू से ऊपर पी आ रहा है, तो प्लस 1 into 1 फैक्टोरियल, बिकॉज दे विल बी एग्जैक्टली 1 फैक्टोरियल नंबर्स, 1 फैक्टोरियल वर्ड्स
starting with S, Y, R, P. And finally U आ गया which is 1 into 0 factorial. Okay, so अपना आंसर आ जाएगा, इसके बाद अपना U आ ही गया, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया, एंड प्लस फाइनली 1. So this will be our answer, which is equal to 70. So for approach of shortcut क्या करेंगे हम, will be writing S, Y, R, U, P and then alphabetical order में ranking mention कर दो, तो 1, 2, 3, then 4, then 5. Now start with left most, तो हमने S से start किया, ओके, और रैंकिंग S का है 3. नाउ राइट पे फोकस करो. ऑन द राइट ऑफ S हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विद द रैंकिंग लेस देन द रैंकिंग ऑफ S. ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विद देयर रैंकिंग लेस देन द चोजन लेटर. तो 3 से छोटा रैंकिंग किनका है, सो 1 and 2. 2 सच लेटर्स आर देयर, तो 2 लिख दो स्ट्रेट अवे. ठीक है, अब आए Y पे, Y का रैंकिंग इज 5, तो हाउ मेनी लेटर्स ऑन द राइट आर देयर विच हैव रैंकिंग लेस देन 5, तो ऑल 3, तो 3 मेंशन कर दो. For R, how many letters on the right are there जिनका ranking is less than R? Only one, which is P. Mention कर दो. How many letters on the right of U are there which have ranking less than U? So exactly 1. And for P this will obviously be 0 क्योंकि right में कोई letter है ही नहीं. अब 2, 3, 1, 1, 0 हमने mention कर दिया. अब right most letter के नीचे जो 0 आया है उसके नीचे mention करोगे 0 factorial. ठीक है, 0 आता 1 आता 2, अल्टीमेटली वहाँ तो 0 ही आएगा राइट मोस्ट पे क्योंकि उसके राइट में कोई भी लेटर नहीं है. उसके नीचे 0 मेंशन करोगे, 0 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. नाउ रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो एंड दीज विल बी एडेड एंड फाइनली एक 1 ऐड कर दोगे. सो दिस विल बी आवर आंसर. 2 into 4 factorial which is 2 into 24 which is equal to 48 plus 3 into 6 18 plus 1 into 2 2 plus 1 plus 0 plus 1. So this is basically 48 plus 18 plus 4 which is 70. So our answer will be 70 in short. क्या ये clear है? Is this part clear? Okay. Is this part clear? And if this is clear, then comment में mention करना कि what will be rank of the word ranks. What will be rank of the word ranks? Okay. Next question करते हैं. If all the permutations of the word climate are arranged in dictionary order, then find the position of the word telecam. वर्ड टेलीकैम का पोजीशन क्या होगा. अब शॉर्टकट जब अप्लाई करेंगे तो वील ऑलवेज बी राइटिंग दैट वर्ड जिसका की रैंकिंग हमें निकालना है. क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज क्लाइमेट के ही लेटर्स को अरेंज करके टेलीकैम बना है, बट आवर कंसर्न इज फॉर टेलीकैम ओनली. क्लाइमेट को भूल जाओ, क्लाइमेट को मेंशन नहीं करना है बिकॉज क्लाइमेट लिख के तुम्हें क्लाइमेट का रैंकिंग मिलेगा, टेलीकैम लिख के टेलीकैम का रैंकिंग मिलेगा. एंड डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ए, देन सी. 7 लेटर्स हैं, ऑल 7 आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, अभी जब हमारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, सम लेटर्स विल बी रिपीटेड, तो उसको कैसे करेंगे वो भी हैंडल करेंगे, बट पहले इसको एक बार एक और एग्जांपल देख लें. तो ए सी ई एंड आफ्टर दैट वी हैव एल, आई है पहले, आई एल एम एंड टी. तो रैंकिंग्स ए 1, सी 2, ई 3, आई 4, एल 5, एम 6 एंड टी 7. नाउ टी के राइट में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विद लेसर रैंकिंग, सारी सबका ही रैंकिंग लेसर है तो 6. ई के राइट में कितने हैं, ई का रैंकिंग 3 है तो 1 and 2, 2 इज देयर. एल के राइट में 5 रैंकिंग है तो 3 आर देयर. आई के राइट में 2 आर देयर. सी के राइट में ओनली 1. ए के राइट में नो लेटर विद लेसर रैंकिंग, और एम के राइट में तो 0 है ही. नाउ स्टार्ट फ्रॉम एम, 0 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड फाइनली 6 फैक्टोरियल. और लास्ट में एक 1 रहेगा, वो ध्यान रखना है. मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव टर्म्स एंड देन करस्पॉन्डिंगली ऐड कर देंगे. तो 6 into 6 factorial. 6 factorial is 720 into 6, so that will be 4320. Plus 5 factorial into 2, that is 240. Plus 4 factorial into 3, that is 72. Plus 3 factorial into 2, that is equal to 12. Plus 2 factorial into 1, that is 2. एंड फिर उसके बाद में 0 into 1 factorial 0 ही आएगा, 0 into 0 factorial 0 ही आएगा और प्लस 1. तो 4320 plus 240, 4560
4632, 4644, 4646 plus 1, 4647, 4647. This will be the ranking of the word telecam. Ranking of the word telecam will be 4647. Is that clear? क्या ये क्लियर है? एंड इफ दैट इज अंडरस्टूड, अब इसके बाद में एक अपना एग्जांपल लेते हैं जहां पे कि लेटर्स विल बी रिपीटिंग, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे व्हेन लेटर्स आर रिपीटिंग, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब ऐसा देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the permutations of the word smiles are arranged in dictionary order, find the position of the word smiles. What would be position of the word smiles in such a scenario? First of all, let us solve it conventionally. Dictionary order में सबसे पहले मेंशन करो तो 2s are there, but dictionary order में पहले s थोड़ी आएगा. So first there will be e, then I, then l, m and s. E, I, L, M and S. So first of all we'll be starting the word with e. जब e से स्टार्ट करेंगे, so since we have 2s, 1m, 1i, 1l, 5 letters हैं after e, total 6 हैं, but e से स्टार्ट किया हमने वर्ड को, so now we have 5 letters remaining to be filled, and out of these 5 letters 2 will be same, 2 are s, so number of ways of arrangement will be 5 factorial by 2 factorial, यानी कि 60 words will be there. I से स्टार्ट करोगे तब भी सेम ही लॉजिक रहेगा, because 2s are there, तो 5 factorial by 2 factorial which is equal to 60. Same for L, 60, same for M, 60. अब वर्ड स्टार्ट होंगे S से. अगेन S से स्टार्ट होगा, सबसे पहले S E, S और E को स्टार्ट में ले लिया, सो नाउ टोटल 6 थे, 4 लेटर्स आर रिमेनिंग, बट आउट ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स ऑल आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक S ऑलरेडी स्टार्ट में आ गया, एक S हमने स्टार्ट में ही ले लिया, ठीक है. सो नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे के सारे डिस्टिंक्ट ही हैं, तो 24. आफ्टर S E we have S I, again 24, then S L, again 24, एंड इसके बाद में फिर आएगा एस एम. एस एम, फर्स्ट ऑफ ऑल एस एम ई आएगा, एस एम ई 3 लेटर्स आ गए, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 वर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद एस एम ई. ओके, आफ्टर एस एम ई विल बी हैविंग एस एम आई. सो फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग विद एस एम आई विल बी एस एम आई, एंड देन एस और एम और आई को हमने यूज कर लिया, तो नाउ ई एल एंड एस आर रिमेनिंग, सो एस एम आई ई एल एस. नेक्स्ट में क्या होगा, एल और एस जंबल करेंगे, सो एस एम आई ई एस एल. आफ्टर दैट विल बी हैविंग एस एम आई, तो हो गया, ई वाले सारे हो गए, फिर ई के बाद में आएगा एल, तो एस एम आई एल ई एस. दिस इज अवर वर्ड दैट वी नीड. टोटल कितने आ गए इससे पहले, तो 60 इंटू 4 240 प्लस 72 312 प्लस 6 318 319 320, एंड our काम का वर्ड इज 321. तो आंसर इज 321. 321 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा. ओके, अब जब हम शॉर्टकट मेथड इसका देखेंगे तो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हमारे एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बस उसके बाद में क्योंकि रिपीटिशन वाला केस है तो हमें फिर थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, बट फर्स्ट 2 स्टेप्स विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल. तो अगेन विल बी राइटिंग द वर्ड जिसका हमें डिक्शनरी ऑर्डर निकालना है, एस एम आई एल ई एस. नो, जिन लेटर्स का रैंकिंग सेम है उनको सेम ही रैंकिंग देंगे, जो रैंकिंग उनका ऑब्वियसली बन रहा है. तो ई का रैंकिंग इज फर्स्ट, देन आई, देन एल, देन एम, एंड देन बोथ एस हैव रैंकिंग 5. नाउ स्टार्ट विद लेफ्ट मोस्ट एस्ट, और उसके राइट में कितने लेटर्स हैं जिनका की रैंकिंग लेसर आ रहा है एस से, तो डेफिनेटली 4 है, ठीक है. लेसर आएगा उन्हीं को लिखना है, तो एस जो हमारा राइट मोस्ट एस है उसका इक्वल आ रहा है, तो उसको मेंशन नहीं करना है. ओनली 4 आर देयर, ओनली 4 लेटर्स आर देयर विद लेसर रैंकिंग. एम के राइट में 3 आर देयर, आई के राइट में एग्जैक्टली 1, एल के राइट में एग्जैक्टली 1, एंड देन ई के राइट में देयर इज नो सच लेटर, और एस के राइट में ऑब्वियसली कोई भी लेटर ऐसा नहीं होगा. ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, और लास्ट में एक 1 मेंशन कर ही देना है. यहाँ तक का प्रोसेस प्रिसाइजली वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बट इसके बाद में डिफरेंस आएगा. अब क्या डिफरेंस आएगा, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद लेफ्ट मोस्ट अगेन, बट अब लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और हमें वैल्यूज डिवाइड करनी पड़ेंगी.
इन दीज विल बी डिवाइडिंग द वैल्यूज। बट क्या डिवाइड करेंगे? अब तुमने लेफ्ट मोस्ट एस को फॉर एग्जाम्पल चूज किया, नाउ इंक्लूड दिस एस, ठीक है, इंक्लूड दिस लेटर, और इंक्लूडिंग दिस लेटर काउंट दोज लेटर्स विच आर रिपीटिंग, ठीक है। तो व्हेन वी आर इंक्लूडिंग दिस लेटर तो हमारे 2s रिपीट हो रहे हैं ऑन द राइट, फोकस ऑन द राइट, तो 2s आर रिपीटिंग, isn't it so? So we'll be dividing by 2 factorial, विल बी डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस लेटर से, उस लेटर को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूडिंग एस, वी हैव 2s दैट आर रिपीटिंग, सो वी आर डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, ओके। नाउ व्हेन वी हैव कम टू m, सो m के राइट में नो लेटर्स आर रिपीटिंग इंक्लूडिंग m, बट m को इंक्लूड करके भी कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो विल बी डिवाइडिंग बाई 1 ओनली, या फिर डिवाइड, ठीक है, 1 से ही डिवाइड करेंगे बिकॉज नो रिपीटेशन इज देयर। सेम फॉर रिमेनिंग, क्योंकि फिर जब m में रिपीट नहीं करा, m के बाद रिपीट नहीं करा, तो i के बाद l के बाद फिर पॉसिबल ही नहीं है। रिपीटिशन होगा तो वो जहाँ पे एक बार रुक गया उसके बाद फिर रिपीट कहाँ होना है, ठीक है। सो डेफिनेटली बाकी सब में 1 से डिवाइड हो जाएगा। बस अब इन सबको रिस्पेक्टिव को मल्टीप्लाई कर दोगे और करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दोगे, तो यू विल गेट द आंसर। तो 4 into 5 factorial by 2 factorial, which is equal to 60 into 4, 240, plus 24 into 3, 72, plus 6, plus 2, plus 1. Finally, this is 300. एक सेकेंड, हाँ 321 आ रहा है ना, ओके, अपना आंसर आ जाएगा 321। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और फंसा सकता है कि जहाँ पे कि 2 लेटर्स आर रिपीटिंग, उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो वैसा भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज ये सब तो समझ लिया हमने, बट इसके बाद भी एक केस हो सकता है जहाँ पे कि 2 लेटर्स आर रिपीटिंग, 2 डिफरेंट लेटर्स आर रिपीटिंग, तो वहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे? तो वैसा भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज कई बार बातें यहीं पे छोड़ दी जाती हैं और फिर वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे, फिर कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल द परमुटेशन ऑफ द वर्ड सीरीज आर अरेंज्ड in dictionary order, then what will be position of the word series? अब in series we have total 6 letters, but out of these 6 we have 2s and 2e, और उसके अलावा we have r and r and an i, ओके। 2s है, 2e है, 1r and 1i, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? सेम प्रोसेस करते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में लिख लेते हैं सबको। डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं, ऑर्डर तो सीरीज ही रहेगा, बट इसके बाद में डिक्शनरी ऑर्डर में रैंकिंग कर देंगे, SERIES। So first of all, E, both E will be having ranking 1, then I ranking 2, then R ranking 3, and then both S will be having ranking 4. ठीक है, we have 2I, 2E, बट उसके बाद में जो I को रैंकिंग दोगे दैट विल बी 2 ओनली, ठीक है। I की रैंकिंग 3 नहीं करनी है, 2 ही रखना है, ओके, क्लियर है? अब सेम प्रोसेस, S से स्टार्ट किया हमने, S के राइट में कितने ऐसे लेटर्स हैं विच हैव रैंकिंग लेसर देन S, ठीक है। 4 से छोटा रैंकिंग इनका है, टोटल लेटर्स हमारे बन रहे हैं इनका 4 से छोटा रैंकिंग है, दैट है 4, टोटल 4 है। E के राइट में 0, R के राइट में 2 सच आर देयर, I के राइट में एग्जैक्टली 1, E के राइट में 0, एंड देन S के राइट में भी 0, देन 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, एंड लास्ट में एक 1 जरूर मेंशन करना है। नाउ डिवाइड करना आप स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद S, so including S, how many letters are there that are repeating? We have, including S, we have 2S and 2E, 2 S रिपीट हो रहे हैं और 2 E रिपीट हो रहे हैं। अभी जो 2 S रिपीट हो रहे हैं इनके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, एंड सिंस 2 E आर ऑल्सो रिपीटिंग, तो उनके लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। यू विल बी डिवाइडिंग by 2 factorial for 2s and by 2 factorial for 2e, ओके। E पे गए, नाउ व्हेन वी कम टू E, तो S तो एक अपना पीछे चला गया, तो अब आगे S तो रिपीट नहीं हो रहा है, S तो एक ही बार आ रहा है, बट E इज कमिंग ट्वाइस, सो विल बी डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल ओनली। नाउ वंस वी कम टू R, तो अब ना तो E रिपीट होगा ना S रिपीट होगा, तो अब बाकी सब में 1 से डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेट अवे। नाउ मल्टीप्लाई करेस्पॉन्डिंग टर्म्स और फिर ऐड कर दो। तो फर्स्ट आ गया हमारा 4 into 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 120 by 4, 30 into 4 120, प्लस यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, 0 में कुछ भी अप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, प्लस 6 into 2 12, प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज 120 प्लस 12 प्लस 3, 120 प्लस 15 135, तो रैंकिंग ऑफ द वर्ड सीरीज विल बी 135। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब यही तुम अपने एंड पे चाहो तो मैनुअली भी प्रॉपरली प्रोसेस के साथ में कि वर्ड स्टार्टिंग विद ई, वर्ड स्टार्टिंग विद आई, वर्ड स्टार्टिंग विद आर एंड देन वर्ड स्टार्टिंग विद एस करके अपने एंड पे सॉल्व करके देख लेना कि रैंक 135 आएगा। क्या ये क्लियर है?
ओके, क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रही चीज़? अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा वेरिएशन है इसका, नॉट एज सच डिक्शनरी ऑर्डर बट सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड सच अ क्वेश्चन हैज बीन देयर इन डिफरेंट एग्जाम, ठीक है, बट वहां से इस क्वेश्चन को लिया है सो दैट तुम्हारा इस पर्टिकुलर केस में भी फंडे क्लियर हो जाए। लेट 5 डिजिट नंबर्स बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 7 एंड 9 विद रेपिटेशन अलाउड। तो रेपिटेशन अलाउड है हमारा, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट है। एंड आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद सीरियल नंबर्स, देन सीरियल नंबर ऑफ द नंबर 42923 क्या होगा? 5 digit numbers are constructed or we are using digits 0 2 3 4 7 and 9 और since repetition is allowed तो 1 digit can come more than once, ठीक है। और यूज करना सबको जरूरी नहीं है क्योंकि 5 डिजिट नंबर ही है, टोटल डिजिट 6 है हमारी और रिपीटिशन भी अलाउड है, तो देर विल डेफिनेटली भी, क्योंकि टोटल डिजिट्स हमारी ज़्यादा है, 5 डिजिट नंबर है, टोटल डिजिट 6 है, तो देर विल डेफिनेटली भी मेनी डिजिट्स जो कि यूज ही नहीं होंगे एक बार भी, ठीक है, या एटलीस्ट 1 डिजिट तो ऐसा रहेगा ही रहेगा। अब कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे हमारे और क्या रैंकिंग होगा सीरियल नंबर ऑफ द नंबर 42923, व्हाट विल बी सीरियल नंबर ऑफ दिस नंबर? अब क्योंकि हमें बनाने हैं 5 डिजिट नंबर और क्वेश्चन हमसे ये नहीं कह रहा है कि जीरो भी अलाउड होगा, ठीक है। जीरो भी अलाउड होने का मतलब जीरो से जीरो आएगा तो अपने नंबर में, बट जीरो क्या लेफ्ट मोस्ट डिजिट में हो सकता है, तो तब हमारा नंबर 5 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। सो दैट इज वाई 5 डिजिट नंबर बनाना है तो डेफिनेटली लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर तो जीरो नहीं आएगा, तो नंबर स्टार्टिंग विद जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। क्या ये क्लियर? ठीक है, नंबर स्टार्टिंग विद जीरो तो जीरो ही होंगे। हमें पहुंचना है 42923 तक, तो जीरो से स्टार्ट होना है नंबर्स तो हमें पता है जीरो होंगे। नाउ नंबर स्टार्टिंग विद 2, 4 digits after 2 and since repetition is allowed तो टोटल हमारे फॉर एवरी डिजिट वी हैव 6 पॉसिबिलिटीज, टोटल डिजिट्स बची हैं 6, तो 6 टू द पावर 4 नंबर्स होंगे विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर 1296, नंबर स्टार्टिंग विद 2। सिमिलरली नंबर स्टार्टिंग विद 3, 3 से स्टार्ट होने नंबर्स भी होंगे 6 टू द पावर 4 विच इज 1296। अब बात करते हैं 4 की, 2 और 3 के बाद में 4 ही आ गया, तो 4 से ही स्टार्ट होने नंबर तो है हमारा 42923। ओके, सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद नंबर्स विद 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला सबसे पहला नंबर क्या होगा? 40 से स्टार्ट होगा, 40। नाउ 3 प्लेसेस आर देयर एंड रिपीटेशन इज अलाउड, तो 6 क्यूब विल बी टोटल नंबर्स स्टार्टिंग विद 40, दैट इज 216। आफ्टर 40 वी हैव 42, अगेन 6 क्यूब, देन विल बी हैविंग 43। एक सेकंड 40 के बाद में 42 के सारे क्यों ले लिए? ये गड़बड़ हो गया ना, 42 से स्टार्ट होने वाला ही तो है 42923। तो 42 से स्टार्ट होने में फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी हैविंग 420, these will be 36, then 422, 423, 424, 427, so all these will be having 36 numbers। इसके बाद में आएगा 429 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, फिर आएंगे 429 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, सो 429 से स्टार्ट होने फर्स्ट नंबर क्या होगा? 4290 से स्टार्ट होने नंबर्स, 4290 से विल बी हैविंग एक ही प्लेस बचा है इसके बाद में, तो 6 नंबर्स विल बी देयर। इसके बाद में आएगा 4292, 42920, 42922 and then 42923, so this will be our number that we desire। टोटल कितने नंबर्स आ चुके हैं? 1296 into 2 that will be equal to 2592 plus 216 plus 36 5 times तो plus 180 plus 6 और फाइनली plus 3, तो कितना आ रहा है यह वैल्यू हमारा? 2592 plus 216 that will be 2808, 2988, 2994, तो 2994 आ गया। दिस नंबर विल बी 2995, this will be 2995, then 2996 and finally our number will be 2997, so our serial number of the number to 42923 will be equal to 2997, that will be the answer। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई शॉर्टकट लगाने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्ली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या ये समझ में आता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें प्रॉपर्ली ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर्ली डिक्शनरी ऑर्डर वाले केसेस को सॉल्व करना भी समझ में आना चाहिए। बाकी शॉर्टकट को जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पर तो यूज़ करके अपना टाइम बचाएंगे, बट अदरवाइज वी शुड ऑल्सो बी नोइंग द कन्वेंशनल मेथड, सो दैट कोई एक वेरिएशन आए क्वेश्चन का तो भी हम उसको इजीली हैंडल कर पाएँ। ओके, क्या ये क्लियर है? तो दैट इज ऑल इन दिस सेशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो सब कुछ समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट द डाउट इन द कमेंट्स
एंड ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई. And if you like this session, then make sure to hit the like button as well. And if you're not always subscribed to the YouTube channel and like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. That is all for this session. Bye bye, take care, and keep learning.